Hi, good morning all. This is Dr. Rashi Chaturvedi, and I had got a lot of queries regarding my workshops and trainings. So I thought of coming up with a small introduction of what is RC Business Growth Consultancies is all about. See, 22 years working down the line in the healthcare sector and obviously collaborating with other sectors, there were a lot of gaps which I felt either were not tapped or tapped in the wrong manner, or they were touched upon, not in depth. So the impact was, I would not say, not even 60% जो आना चाहिए था. So then I thought, why not? I came up with this venture 1 year ago, and together with Six Sigma Business Consultancy, targeting business growth, operational workflow, then with entrepreneurs, startups, with corporates, with businessmen, with small segment, medium segment companies, businesses, universities, colleges, you name it, and it is there. Apart from that, then I thought of coming up with various workshops and trainings. But ऐसा नहीं है कि workshops and trainings वर्ल्ड वाइड नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, and they are very good. There are very good people out there, lot of coaches, lot of mentors doing all these things what I will be telling you now. But yes, I wanted to touch upon various aspects which I felt कि there is a strong gap what anyone and everyone is not teaching, or if they are teaching then the impact is not there. So there are three major trainings or workshops which I felt needed a lot of attention on the global platform, I must say. One was POSH, that was prevention of sexual harassment of women at workplace. But after 2016 updation of the act, वहाँ पे एड्रेस तो किया गया ट्रांसजेंडर को भी, मेन को भी, बट लीगली एड्रेस नहीं किया गया. देयर वर लॉट ऑफ पॉइंट्स चेंज्ड ऑन दैट टॉपिक बट नॉट टच्ड अपॉन करेक्टली, विच शुड नॉट. अभी मैंने एक ट्रेनिंग करी तो वहां पे मैंने देखा कि पीपल डोंट इवन नो, मेन डोंट नो हाउ टू रिपोर्ट, मेन डोंट नो वेयर टू रिपोर्ट. द इंटरनल कमिटी सेज कि वी विल नॉट टेक योर कंप्लेंट, right? And at times what happens, the internal committee takes the complaint but they don't know how to resolve it, right? तो उससे क्या होता है कि usually what we see is the man is asked to leave the job or their profile, etc., leading to a lot of stress and anything you can say. Apart from that, there is a very strong issue what I felt in the audit. पॉश ऑडिट लोग तो बहुत आसानी से 4 लाइन में कर देते हैं, इतने केस आए, इतने केस चले गए, इतने रिपोर्ट हुए, इतने नहीं हुए, इतने रिजॉल्व हुए, जस्ट द नंबर्स. बट ऑडिट इसको नहीं कहते हैं, राइट? जो ऑडिट करते हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि ऑडिटिंग इज समथिंग which should have some kind of core values. और ऑडिटिंग का एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है, एक वे होता है जो पॉश के लिए डिस्क्राइब्ड नहीं है कहीं पे भी इन द राइट फॉर्मेट. इवन जो हम सबमिट भी करते हैं रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भी बहुत छोटी सी एक रिपोर्ट होती है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ अ रिपोर्ट, एंड इट हैज नो मीनिंग. उससे कोई भी एडवांटेज मैं कहूँ मिल रहा है किसी भी तरीके का एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन को, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगा. सो वो एक बहुत बड़ा कारण था पॉश वर्कशॉप और ट्रेनिंग स्टार्ट करने का. मेरी जो वर्कशॉप्स हैं वो सारी ऑफलाइन हैं, कुड बी ऑफ अ डे और 2 days डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स विश, और जो ट्रेनिंग्स हैं वो ऑनलाइन है 2 hours और मे बी 3 hours, अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स विश, बट मिनिमम 2 घंटे की ट्रेनिंग्स हैं. एंड पॉश अवेयरनेस ट्रेनिंग्स के साथ साथ आई फेल्ट द नीड ऑफ trainings like diversity and inclusion, culture and heritage, unconscious bias, and lot more. So these are the other trainings. Apart from these,
Depending on the problem of the organization, we customize and curate the trainings in POSH accordingly. Now my second training and workshop is of POXO. POXO is your protection of children from sexual offences. Again, here also I've seen in schools and everywhere there are small committees have been designed. People are aware, लेकिन अगेन यहाँ पे भी जो मेजर प्रॉब्लम आई वो ये है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है और स्कूल्स के स्टाफ में अवेयरनेस नहीं है. मे बी 1 or 2% जो पॉक्सो को डील कर रहे होंगे या वो पर्टिकुलर कमिटी जो उसको डील कर रही है उसको नॉलेज होगी गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स के बारे में, बट अदरवाइज पूरे स्टाफ को अवेयरनेस नहीं है. 4th grade एम्प्लॉयज को अवेयरनेस नहीं है. बच्चों में एक आजकल तो जो कंडीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा बच्चा एक तरीके से चलना शुरू करता है और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज nowadays what I saw was कि the sexual offences have no eye, no age, no color, no pattern, nothing at all. 2 साल का बच्चा is also targeted, a 1-year-old child is also targeted, and at times a neonate is also targeted. मतलब it is so pathetic. So this kind of awareness in schools and specifically for parents is very much required. So the stakeholders का जो role play है वो बहुत important है, जो यूजुअली मैंने देखा है नहीं हो पा रहा है. NGOs में, स्कूल्स में, हर जगह केसेस आर राइजिंग दीज डेज. अगेन ऑडिट प्लेड अ मेजर रोल. ऑडिट नहीं हो रहा है और अगर ऑडिट हो भी रहा है तो ऑडिट उस तरीके से ये लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रॉब्लम को टारगेट करना चाहिए. Audit is just for the sake of numbers, that's it, which is of no use. You should have a pre-audit, you should have an audit report, then you should have a post-audit review as well, जो कि इतना sincerely मैं कहूँगी annually take care नहीं हो रहा. Apart from this, again, the workshops are 1 or 2 days, depending on the comfort of the schools, comfort of the universities, comfort, because POXO is 18 साल से नीचे, तो ऑब्वियसली हमारा मेजर टारगेट NGOs हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, स्कूल्स हैं, या ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं जो 18 साल से नीचे की बच्चों को वो टारगेट करते हैं. तो इस तरीके के जो एरियाज हैं वहाँ पे पॉक्सो का नीड बहुत ज़्यादा है. अगेन जो वर्कशॉप है वो 1 से 2 दिन की है और जो इसके साथ आपका ट्रेनिंग्स है, अगेन इट इज़ फॉर 2 hours. पॉक्सो ट्रेनिंग्स आर ऑल्सो depending on, one is the awareness training and इसके बाद it is all customized according to the problems involved in the school, so we curate it then and there according to the school, ताकि हमें एक प्री ट्रेनिंग रिव्यू मिल सके कि किसी को क्या आता है. और हमें obviously after the training, जब हम 1 महीने बाद 3 महीने बाद अगर हम उस प्रॉब्लम को रिव्यू करें, उसका ऑडिट करें, एक हम बाय एनुअल ऑडिट लेके अगर हम चलते हैं, तो अगर हम देखें तो उसमें हमें नो डाउट 50% का इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखना चाहिए विद इन 3 to 6 months ऑफ स्पैन. और अगर हमें नहीं दिख रहा है तो हमें अपनी फर्दर ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स को उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारी एनालिसिस होगी उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू रिविजिट इट एंड रिवाइज इट एंड इनकॉर्पोरेट दोज एसेंशियल थिंग्स जो जरूरी है फॉर द अपग्रेडेशन. थर्ड बट नॉट द एंड इज सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स चाहे मैं टीम वर्क का हूँ, कोलैबोरेशन का हूँ, लीडरशिप का हूँ, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर कल्चरल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स हैं. आजकल इतना फास्ट पेस्ड है सब कुछ, और इवन आजकल बच्चे, दे आर द किड्स, द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और मे बी द इंटर्न, सब कुछ ऑनलाइन है. सो मैंने जो नोटिस करा वो ये नोटिस करा कि कई कॉलेजेस में, बिकॉज एवरीथिंग हैज गॉन मेजरली ऑनलाइन, बच्चों के एटिकेट्स, कल्चरल एटिकेट्स नहीं मैच करते. दे डोंट नो हाउ टू परफॉर्म, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे डोंट नो हाउ टू एक्चुअली विजिट और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड. वो एक बहुत बड़ा उनका प्रॉब्लम है. उनमें ईमेल एटिकेट्स नहीं है, उनमें व्हाट आई फील इज, जैसे अगर हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द डिस्कशन, हाउ टू एंड द डिस्कशन. ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ.
और जो उनके इंटरव्यूज में आगे चल के उनकी ग्रूमिंग सेशंस में उनको हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग्स, राइट। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन सॉफ्ट स्किल्स में भी लोग ऑडिट नहीं कर रहे, जबकि इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली ग्लोबल ऑडिट इज रिक्वायर्ड। सॉफ्ट स्किल्स में भी अभी आई हैव सीन पीपल की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर है, कई जगह कल्चर बहुत बड़ा बैरियर है, हर सी for everything you can create an audit, internal audit in your organization. You don't need to go out, hire a hefty consultant for this. No, you don't need to do it. You can create an audit to measure, to analyze, to define what is the issue and how to take care of the same, and similarly to aware the employees ki yes, this is the problem in the organization and this is the way to deal with it. So these are the things. तो ये 3 मेजर मुझे लगे थे प्रॉब्लम्स, पॉश, पॉक्सो एंड सॉफ्ट स्किल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस माय कंसल्टेंसी वर्क. So yes, this is me, Dr. Rashi Chaturvedi, with my venture RC Business Growth Consultancies. अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी अच्छा, किसी भी तरीके की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लीडरशिप स्किल ट्रेनिंग या टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग या अदरवाइज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट अगर मैं क्यूरेट कर सकती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी इंटरनल कमिटी को किसी भी तरीके की वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन डिटेल्स. My details are, website is www.rcbgc.com. My email ID is dr.rashi@rcbgc.com, and my official number is +91 9125 222 079. Stay tuned with me. Thank you.